octal number system. We have already done this. Okay. So what is the equivalent of all these octal number system into binary? अगर binary counting procedure अगर लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा? 0, 0 के बाद लिखेंगे 1, 1 के बाद क्या लिखेंगे? जल्दी बोलिए. 1 0, right? Okay, so 1 0. Okay, I am writing it down. किसी को problem है तो unmute करके पूछ लेना. So the next number will be 1 0. The next number will be 1 1. The next number will be 1 0 0. Okay, and the next number will be 1 0 1. Then 1 1 0 and then 1 1 1. So this will be the sequence from 0 to 7. If you write down binary numbers, so this will be the sequence. So you see that from number 4 onwards, the bits or the digits, binary digits in each number is 3. So this is 100, 101, 110, 111. So in order to have the same 3-bit pattern for all the numbers, what we will do, we will do the padding of this number with zeros on the left hand side of the number. For example, we will write 0 as 0 0 0. Similarly, we will write 1 as 0 0 1. Similarly, we will write 1 0 as 0 1 0, and we will write 1 1 as 0 1 1. Why we have done this? We have done this to get a uniform pattern of writing down the binary code in 3 bits. Because when you write down octal numbers from 0 to 7, the maximum digit used for 7 is 3. Equivalent of octal 7 is 1 1 1. नॉर्मल अगर हम काउंटिंग प्रोसीजर से देखें तो अगर हम सारे नंबर्स को अगर 3 बिट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वी कैन सिंपली ऐड zeros to the left hand side of this binary number. So this way we have 0 0 0 to 1 1 1 written as binary numbers which are equivalent of octal numbers. 0 का 0 0 0, 1 is represented by 0 0 1 and so on. So this is our basic reference table. Okay, ये रेफरेंस टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जो काउंटिंग पैटर्न पता है उससे आप ये रेफरेंस टेबल क्रिएट कर सकते हैं. ओके, दूसरा ये भी तरीका हो सकता है. आई विल गिव यू अ क्विक स्नैपशॉट. जो पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, ये 0 से 7 तक ये जो नंबर ऑक्टल नंबर है यही डेसिमल नंबर भी तो हैं. इन डेसिमल नंबर को अगर आप इन्हें डेसिमल मान करके बाइनरी में कन्वर्ट करो तो क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे 2 से और रिमाइंडर को कलेक्ट करते जाएंगे और उसको एलएसबी से एमएसबी तक लिखेंगे तो भी आपका ये इक्विवेलेंट 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ही आएगा. So you can get this reference table from so many ways. The basic one is by doing the pattern counting, the basic method. तो एक बार जब आपका ये octal to binary reference ready है तो in due course of time धीरे धीरे आपको ये reference याद हो जाएगा. It will be on your tips. तो अगर आपको ये रेफरेंस टेबल पता है या याद हो चुकी है तो अब ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है. 75210 इन ऑक्टल इज व्हाट इन बाइनरी. दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव. तो कैसे करेंगे, ये जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं 75210 इनको आप अलग अलग लिख लीजिए 75210, करेक्ट. और उसके बाद ये जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं इन डिजिट्स का यहां से इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसके नीचे लिख दीजिए. फॉर एग्जांपल 0 इज 0 0 0. ओके, 1 इज 0 0 1. ओके, 2 इज 0 1 0. ओके, 5 is 1 0 1 and 7 is 1 1 1. Okay, I repeat, 75210 in octal is equal to what in binary? This is our objective. We want to do octal to binary conversion. So the method is very simple. What you will do, you will write each individual octal digits as a standalone digit, and for each digit, if you see this reference table, you will find a binary equivalent. For example, 7 का binary equivalent 111 होता है, 5 का binary equivalent 101 होता है, and so on. सबका binary equivalent इस reference table से लेकर इसके साथ आप attach कर दीजिए. So what is this? Your answer is this number is 111
101, 010, 001 and 000. So this is your binary representation of this octal number. Let me separate it a little bit. थोड़ा सा separate कर दे जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए. So 75210 in octal is this in binary representation. Okay, I hope this is very clear. Okay, so if this particular portion is clear, you try to complete this one. I am hiding this reference table. ये वाला करके बताइए. I am waiting for 1 minute. इसको करिए. 4581 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है. स्टार्ट डूइंग. Any one of you can unmute and tell me the answer. 100. Okay. 100. 101. 101. 1000. 10. 0. 0. Again 0. 8. Sorry. There is a mistake. 8 cannot be an octal digit. There is a mistake. 8 octal में होता ही नहीं ना. octal में तो 7 तक के symbols होते हैं हमारे पास. Okay, so 7 is 111. Okay, 7 is 111 and 1 is 001. Okay, यहाँ पर 8 नहीं हो सकता. 8 octal digit में नहीं होता. 4571. So this is my number. You can get it from the reference table also, or in due course of time you will be able to learn this also. So this is the octal representation, binary representation of octal number. So what is my answer? My answer is 100. Okay, 101. I'm giving a square so that you can understand. 001. Okay, so this is octal to binary. Please unmute yourself. There is some kind of background noise. किसी के पीछे कुछ बज रहा है. Okay, so this is octal to binary, very straightforward and very simple method. And I told you कि binary string बहुत लंबी होती है, तो octal number system की मदद से हम एक बड़े number को एक compact representation में produce कर सकते हैं और इसकी जरूरत आगे कई जगह पर पड़ेगी. So this is how binary number systems and octal number systems can be interchangeably converted. तो इसका reverse procedure करते हैं. इसका reverse procedure क्या है? Suppose आपके पास कोई binary string है, okay, और उसको आपको octal में convert करना है. So I have 4 examples. Okay, so let us do that. So this one is an example of binary to octal. Okay, और इसका reverse procedure हमें करना है. Reverse procedure कैसे करने का अभी दिखाते हैं. What you will do, you will see this binary string. आप binary string को देखेंगे और इसका right hand side से LSB से least significant bit से बढ़ते हुए most significant bit की तरफ देखेंगे और क्या करेंगे, आप इसकी bits में 3 bits का pair बना देंगे. For example, right hand side से आपने क्या किया, 3 digit select किए. 3 digit बोले या 3 binary bit बोले, बात एक ही होगी. 3 बिट्स को इकट्ठा किया और उसको आपने एक ग्रुप में बना दिया. करेक्ट. फिर राइट हैंड साइड से आपने 3 बिट्स इकट्ठा किया और इसको आपने एक ग्रुप में बना दिया. ओके, और फिर आपने यहाँ से शुरू किया. तो देखिए यहाँ पर आपके पास 2 ही डिजिट्स बची. यहाँ पर आपके पास 2 ही डिजिट्स बची हुई हैं. तो इसको यस मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैम आनंद को मैम इन कर लीजिए. वो काफी देर से ट्राई कर रहा था, वो इन नहीं हो पा रहा था. नेटवर्क इशू था उसका थोड़ा सा. ओके, गिव मी अ सेकंड. थैंक यू मैम. ओके, सो क्या करेंगे, बाइनरी स्ट्रिंग को राइट हैंड साइड से 3 के ग्रुप में बांटेंगे और MSB की तरफ बढ़ते हुए इस काम को रिपीट करेंगे. तो 000 इधर की तरफ से आपने इसको ग्रुप किया, तो लास्ट में क्या बचा, लास्ट में आपके पास 2 ही बिट्स बची हुई हैं. कोई बता सकता है इसको 3 का पेयर बनाने के लिए क्या करें? आगे 0 लगा रहे हैं. मैम आगे 0 लगा दीजिए. 0 लगा दीजिए आगे.
साइड में 0 लगा देते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 0 को ऐड करने से नंबर पर कोई भी चेंज नहीं आता. So I add 1 0 to this number. Let us have, okay, so this pairing of 3 bits starting from LSB to MSB is now done. जब हम ये काम कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके जो इक्विवेलेंट नंबर्स हैं फ्रॉम दैट रेफरेंस टेबल, उसको यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. सो व्हाट इज 011? 011 is 3. 011 is 3. Okay. 300. 001 is 1 and 000 is 0. 0. So 310. 310. So 310 is your octal representation. Okay. So very easy. Start from LSB, move towards MSB, group the numbers into 3 bits, and if you fall short of any digit, you can add the required number of zeros to the left hand side of the number. Okay, so you start doing the second one and tell me the answer. second का 1023. Okay, very good. So इसको हम यहाँ पे दोबारा कॉपी कर देते हैं, जिससे कि जब हम आपको भेजें तो आपको पता हो कि ओरिजिनल नंबर क्या था और कन्वर्टेड नंबर क्या था. सो दिस इज माय एग्जांपल 1. ओके, दिस इज माय एग्जांपल 2. ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन. तो आपने इसको क्या किया, आपने राइट हैंड साइड से इसको डिवाइड करना शुरू किया, पेयर करना शुरू किया 3 डिजिट्स में. लेट अस हैव ओनली 2 कलर्स, और देन 000. ओके, एंड देन यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 2 नंबर्स. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 0 लगा देंगे. सो दिस बिकम्स 001, 000, 010 and 011. So what is the equivalent of each of these 3 pairs in octal? 001 is 1, 000 is 0, 010 is, जल्दी बोलो, 010 is 2, 010 is 2, and 011 is 3. So 103 is your octal equivalent. Correct? ये ओरिजिनल नंबर था. ओरिजिनल में आपने लास्ट में 2 zeros और ऐड किए, उसके बाद आपने 3 का पेयर बनाया और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया. Okay? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इट्स वेरी सिंपल. आज के लिए समझ लीजिए, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी. सो लेट्स डू दिस एग्जांपल आल्सो. तीसरा वाला करिए क्विकली. मैम 0350. Very good. So I will copy this for the benefit of others. I hope everybody is able to follow. क्या कर सकते हैं हम इसको, हम राइट हैंड साइड से इसको पेयर करने की कोशिश करते हैं. Then and then you fall short of 2 zeros, so you add 2 zeros. So what is this number in octal? This number is 0, then 3, then 101 is 5, and then 000 is 0. So this number is 350 in octal. Okay, so this way you can convert any octal number to binary and binary number to octal. Okay, for octal you have to write down binary representation in 3 bits, and for binary to octal you have to pair 3 bits from the binary number and then convert it into its equivalent octal representation. Okay, so these are certain more examples, और भी कर सकते हैं, but the process is the same. So the same method will be done for binary to hexadecimal also. अब आते हैं हम लोग binary to hexadecimal पर. Let us do this. Again we will follow the same counting procedure. Excuse me, ma'am. Yes. What is There it? are some students who are trying to join the class. Please let him in. Anand. Okay. Thank you, ma'am. Okay, so let us do the same thing with binary to decimal. Okay, so we will do the same thing with binary to decimal. पहले हम अपना reference table तैयार कर लेते हैं. कैसे तैयार करेंगे? 0, 1, 2, 3, 4. We have symbols from 0 to 9.
आप लोग करते जाइए अपने आप. आई विल गिव यू दिस शीट ऑल्सो. ये वर्ड डॉक्यूमेंट हम आपसे शेयर करेंगे. 0 to 9, then we will start with A to F. So this is my hexadecimal digits. ये हमारी hexadecimal digits. Okay, so let us write down the binaries using our simple counting procedure. 0, then we have 1, then we have 1 0. Center कर लेते हैं. Okay, so we have 1 0, and then we have 1 1, then we have 1 0 1, and then 1 1 0, then मैम 1 0 0 0 1 0 Yes, 0. ma'am. yes 1 0 0, then we have 1 0 1, and then we have 1 1 0, correct, and then 1 1 1. So this we have done. What is the next number? 1 0 के साथ और 1 1 के साथ हम अटैच कर चुके हैं. अब हम सेलेक्ट करेंगे 1 0 0. तो 1 0 0 along with 0, then 1 0 0 along with 1, then अब क्या करेंगे? 1 0 0 फिनिश हो चुका, then we will have 1 0 1 with 0 and 1 0 1 with 1. Done. Then we will have 1 1 0 with 0 and 1 1 0 with 1. This is done. Then we will have 1 1 1 with 0 and 1 1 1 with 1. ये टेबल आप लोग लिख चुके हैं, आपने हमको भेजी थी. So this is my binary equivalent for 0 to F. कैसे मिला? बस सिंपल काउंटिंग करते जा रहे हैं हम, करेक्ट. अब आप F को देखें, जो लास्ट डिजिट हेक्साडेसिमल की है, तो उसके इक्विवेलेंट अगर बाइनरी नंबर लिखा जाए तो वो क्या आता है? दैट इज 1 1 1 1. दैट इज इन 4 बिट्स. वो 4 बिट में आता है. तो 0 to 15, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 0 to 15 सारे नंबर्स को 4 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? हम सारे नंबर में लेफ्ट हैंड साइड से 0 0 की पैडिंग कर देते हैं. तो दिस बिकम्स actually become 0 0 0 1. This becomes 0 0 1 0. This becomes 0 0. This becomes 0. This becomes. So this is how I can write down each of these numbers in 4 bits. 4 bit में 0 to 15 सारे numbers का binary equivalent हमने लिख लिया. Correct? So my reference table is ready. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये रेफरेंस टेबल याद हो जाएगी. You will be able to quickly tell 9 is 1001, 10 is 1010 in decimal, but in hexadecimal you call that 10 as A. 10 को A बोलते हैं. Decimal number क्योंकि हमारे टिप्स पर है, हमारी बोलचाल की भाषा में है, इसलिए हम उसको 10 11 12 से यूज्ड टू होते हैं और हम फटाफट उससे रिलेट कर पाते हैं. So as you practice this, you will be able to learn this reference table also. So once the reference table is ready, your work is same. कैसे करना है? For example, 75210 in hexadecimal is what in binary? आपको जानना चाहते. Same examples अगर हम लोग solve करने की कोशिश करें, तो if 75210 is a hex number, I want to find out its binary equivalent. So what will I do? I will write down the individual digits 75210, and from the reference table I will write down the binary equivalent. The binary equivalent of 7 is 0 1 1 1. आप नोट करिए इस बात को कि 111 ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी बाइनरी के लिए ऑक्टल टू बाइनरी करते तो 111 आता, लेकिन अगर हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में देखना है तो क्या है? देयर इज a representation in 4 bits और therefore इसी चीज को 0 1 1 1 लिखा गया है. ओके, तो जहां तक नंबर 0 से 7 तक होंगे उनकी लास्ट 3 बिट्स वही वाली होगी जो आपने ऑक्टल टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में देखा था. सो व्हाट इज 5? 5 इज 101 होता था वहां पे, रिकॉल करो. सो दिस बिकम्स 0 1 0 1. Okay, so now let us do, we can do this quickly. So 2 is 0 0 1 0. 1 0. 1 is 0 0 0 1. 0 0 0 1 and 0 is 0 0 0 0. 4 बिट में. तो अगर आपको हेक्साडेसिमल
टू बाइनरी करना है तो इंडिविजुअल डिजिट्स का 4 बिट इक्विवेलेंट लिख करके यू कैन गेट द बाइनरी स्ट्रिंग. सो दिस इन हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, 01111 0101 0010 0001 and 0000. Okay, so this is the binary equivalent. Correct? No problem. The same procedure No, ma'am. as total to मैम binary. देयर आर Yes. मैम स्टूडेंट मैम उसको इन कर लीजिए, आयुष गुप्ता. So everybody is in, और तो किसी की रिक्वेस्ट दिखाई नहीं पड़ रही है मुझे. Okay. मैम वो बोल रहा है. So this one is the last. अब कोई आए तो please don't interrupt me. इसके आगे कोई आएगा तो फिर वो next class join कर लेगा. Okay. So this is hexadecimal to binary. इसी तरह आप ये वाला भी कर सकते हैं. Can you do this? Yes, ma'am. I'm waiting. Okay. Yes, Let ma'am. us. हो गया Ma'am, हो गया. मैम डन. हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4 0100 0100 5 is 0100 0101 0101 0101 1 correct. 1000 1000 1000 000 0001 0001. देखिए 8 ऑक्टल डिजिट 8 ऑक्टल में नहीं था, 8 हेक्साडेसिमल का सिंबल है, तो यहाँ पे 4 बिट्स 1000 यूज हो गई. सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट हेक्स टू बाइनरी. ओके, ये तो सिंपल केसेस थे. नाउ लुक एट दिस वन, द नंबर A5F10. Okay, this number A5F10 hexadecimal to binary. Okay, so how will we do this? हो गया. What is A actually? What is A? 1010 1010 A 1010 1010 is 10. This is ये A जो है ये एक्चुअली डेसिमल का 10 है ना, तो डेसिमल 10 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे जरा करके देखते हैं, अगर आप डेसिमल 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए तो आप कैसे करेंगे? डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? आप इसको डिवाइड करेंगे, किससे? बोलो, किससे डिवाइड करेंगे? 10 Ma'am, 2. से डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर लोग वो सेव करते जाएंगे ना, तो क्या आएगा? इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या पहला रिमाइंडर क्या आएगा? 0. दूसरा क्या आएगा? कोशेंट इज 5. कल किया था ना, कोशेंट इज इक्वल टू 5 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आएगा. अब 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? कोशेंट इज इक्वल टू 4. ओके, एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? कोशेंट इज इक्वल टू 2 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. रिमाइंडर आपका आएगा इज इक्वल टू 0. ओके, अब 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? कोशेंट इज इक्वल टू 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. Ma'am, 1, 0. ओके, अब 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट इज इक्वल टू क्या आएगा? कोशेंट इज इक्वल टू 0 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 1. ये काम कब तक करते जाते हैं? जब तक कोशेंट 0 ना आ जाए. और रिमाइंडर सारे कलेक्ट कर लेते हैं. कुछ गड़बड़ हो गया इसमें. 2 4 कोशेंट इज इक्वल टू, नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया. मैम 5 और 2 से करेंगे तो क्वेश्चन 4 कहाँ से आएगा? नहीं, ये वाला स्टेप गलत हो गया. ओके, 2 2s are 4 और रिमाइंडर इज 1. 2 1s are 2, रिमाइंडर इज 0. 2 0s are 0. अब क्वेश्चन 0 हो जाएगा एंड रिमाइंडर इज 1. तो आपने रिमाइंडर कलेक्ट कर लिया. अब नीचे LSB से MSB बनाने के लिए आप क्या करते हैं? नीचे से ऑर्डर में कलेक्ट करना शुरू करते हैं. तो योर आंसर इज 1010. तो आप डेसिमल 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो भी आपको 1010 मिलेगा. ओके, वही चीज अगर आप यहाँ पे सिंपल काउंटिंग प्रोसीजर से देखेंगे तो हेक्साडेसिमल की जो 10th डिजिट है दैट इज A, दैट इज सिंबल A.
that is 1010 in binary. किधर से भी देखेंगे आपको ये मिल जाएगा. There will be many procedures. So what is A? A is actually 10. Okay? तो उसी 10 को A is actually 10. तो आप 10 को बाइनरी में लिख सकते हैं या रेफरेंस टेबल से देख सकते हैं. So this is 1010. Okay? Now what is 5? 5 0 is 1 0 1 0101. yes 0101. What is F? Now what is F? Same 1 procedure. 1 1 1 1 1 1 1 दिखाई पड़ रहा है यहाँ से. आप F यानी कि 15 को डिवाइड करके देख सकते हो 2 से and you will end up with 1111. Okay, I'm waiting for 1 minute. आप वेरीफाई करो. मैम यहाँ पे आपने डिवाइड किया, क्वेश्चन 5 आया था और सेकंड स्टेप में 2 कैसे आ गया? वही देख रहा था कौन सा वाला? मैम 5 और 2 में क्वेश्चन 2 कैसे आ जाएगा? आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे ना. यस मैम. क्वेश्चन 2 नहीं आएगा ना. क्वेश्चन इज 2 ना. यस मैम. देख लो. आई एम वेटिंग. ठीक है बेटा. आपने 10 को पहले 2 से डिवाइड किया तो 5 आया. 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया. 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया. ओके, चलो इसको भी करके देख लो. 15 को डिवाइड करो. 15 को डिवाइड करो. 2 से डिवाइड करो तो 2 7 14 और रिमाइंडर क्या आया? 1. 1. ओके, अब 7 को डिवाइड करो 2 से तो क्या है? 3. 3 1 रिमाइंडर 1 1. ठीक है. अब 3 को 1 डिवाइड 1 करो 2 से तो क्वोशिएंट 1 और रिमाइंडर क्या आया? 1 1. 1 अब 1 को डिवाइड करो 2 से 0 0 और रिमाइंडर क्या आया? मैम 1 1. जब तक क्वोशिएंट 0 ना आ जाए आप रिपीट करते हैं. यस रिमाइंडर्स को कलेक्ट करते जाते हैं. अब रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में कलेक्ट करोगे तो 1 1 1 1 आ जाएगा जो कि आपका F का इक्विवेलेंट है. करेक्ट. तो जब आप F का इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 1 1 1. ओके, अब 1 is 0 0 0 1 और 0 is 0 0 0 0. You should get full marks अगर आपको इस तरीके का कोई कन्वर्जन मिलता है. कोई डाउट नहीं होना चाहिए. So A5 F10 is 0 0 0. This number 1010, this big binary number. इसको एक साथ रखोगे तो that will be a big string. और उसको अगर compact form में represent कर सकते हैं तो A5 F10 is the hexadecimal number. Correct? Okay. जल्दी से ये वाला करिए. मैम 1011 B is 1011. Very good. 1011 0 1 0 1 0101 6 is 0 1 1 0 0110 0. 1 0. Correct. मैम 001 1 is 001 0001. so there should be no confusion in conversion Yes, from hexadecimal to binary. Okay, so very easy. For Yes, each digit you have to write down the binary in its 4-bit representation. देखो इस बात को ध्यान रखो. आप 1 को खाली 1 भी लिख सकते हो. आप 1 को 001 भी लिख सकते हो. आप 1 को 01 भी लिख सकते हो. लेकिन हम जब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्ट कर रहे हैं तो हर डिजिट को उसके 4-बिट रिप्रेजेंटेशन में लिखना है. बस इस बात का आपको ध्यान रखना है. आप A को 1010 लिख रहे हैं लेकिन 5 को लिखने के लिए आप 010 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. But because it is in hex, we have to use 4-bit representation. Therefore, we add a 0 to the left-hand side of this number. बस इस बात का ध्यान रखना है. Okay? So this is hex to binary. Now let us convert certain C8. numbers from binary to hex. क्या करेंगे? C8 जल्दी बताइए. मैम C8 C8 मैम C8 Very good. क्या किया? What is the procedure? Right hand side से 4 मैम bit 4 को 4 सेलेक्ट कर लिए. और उसको पेयर 4 कर सिलेक्ट किया मैम. 4 सेलेक्ट कर लिया आपने. ओके, और उस पेयर को आपने लिख दिया एज अ बाइनरी इक्विवेलेंट. सो 110
1100 is from your reference table. It is C. Okay, A B C D E F थोड़े दिनों में याद हो जाएगा आपको. So this is C, and 1000 is 1000 from your reference table is 8. 8. So this is C8. Your number is C8 in hexadecimal. So I need not repeat. इसी तरह आप आगे भी कर सकते हो. कैसे? Quickly do this. 863. 863. 863. Very good. 863. तो जहां पर नंबर की कमी दिखाई पड़ेगी, 4 बिट नहीं होगा, उसका क्या करेंगे? वहां पर हम ऐड कर देंगे नंबर्स को. So this is 8 and this is 6 and this is 3. So this is your 863 in hexadecimal number. ओके, कुछ नंबर्स को ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं हम. लेट अस डू. ओके, वो आप रिप्रेजेंट कर लेंगे. सपोज कर लीजिए हम यहाँ पर 00 की जगह इसको 1111 की स्ट्रिंग बना देते हैं. ओके, सो व्हाट विल बी योर आंसर? ये 4 नंबर्स इधर से. ओके, और इसको हमने किया, और ये वाला नंबर 4 डिजिट कुछ और कर दे. ओके, सो 1011 इधर से, और इधर क्या 3 नंबर बचे हुए हैं हमारे पास, तो हम लास्ट में एक 0 ऐड कर सकते हैं. सो टेल मी व्हाट इज द इक्विवेलेंट? 1DF. 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 1101 को लिखेंगे D और 1111 को लिखेंगे F. So this is how you can convert any binary string to a hexadecimal string. ये वाला भी कर ले लास्ट में जल्दी से. This is the last example. 0E8. Okay. So 0. What is the next number? Oh, sorry. E. 08. Ma'am, E. 0E8. 0E8. 08. Yes. So those who are following, they will never forget this procedure. Yes. I will share this word sheet with you through Google Classroom. उसको ज्वाइन कर लीजिए. So जिससे कि क्लास में जो एग्जाम्पल्स करे हैं वो उसके नोट्स आपके पास इकट्ठा हों, और जो हम बोलते जा रहे हैं आप सेपरेटली अपना नोट एक बनाते रहिए, बिकॉज क्लास नोट्स लेना सुनी हुई बातों का, that is also an art, so you should be doing that also. Yes, Okay, ma'am. and I'll add some more examples to this sheet for your practice. So I'll have a quick recap. Today we did 2 kinds of conversions, from binary to octal, and Binary. octal to binary to octal, octal to binary, binary to octal, vice versa. And similarly we did binary to hexadecimal and hexadecimal to binary. The procedure is same. Your basic understanding of this reference table will help you to write down the number in equivalent forms. You have to take care of just one thing, that when you are writing down this reference table for hexadecimal to binary, each number should be represented in 4 bits, and when you are writing down this this reference Octal. table for octal to binary, 3 each digits. number should be represented in 3 bits. So that is the only requirement, and you very well know how to write down this counting in the number of bits. Okay, आपका next assignment है, नोट करके लिख लीजिए. ये 4 बिट में नंबर रिप्रेजेंट हुआ है ना, 0 to 15 लिखा हुआ है. 0 to 15 यहाँ पे 4 बिट में रिप्रेजेंट हुआ है. ओके, नाउ आई वांट 6 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स. अगर देखिए, अगर आपके पास 3 प्लेसेस हैं, अगर आपके पास देखो, अगर आपके पास 3 प्लेसेस, अगर आपके पास 2 प्लेसेस हैं, लेट अस हैव 2 प्लेस. चलो 1 से शुरू करते हैं. अगर आपके पास 1 एक प्लेस होल्डर है, तो उस 1 प्लेस को आप किससे भर सकते हो? Zero. या तो 0 से या तो 1 से. ओके, इसको बढ़ा देते Yes, हैं. ma'am. तो आप किससे भर सकते हो? या तो 0 या तो 1 हो सकता है ये. ओके, तो इसके मतलब इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर टू रिप्रेजेंटेशन? देयर इज 1. तो अगर एक डिजिट है रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन that can be formed is 2 raised to the power 1, that is equal to 2. ठीक है, 2 raised to the power 1 that is equal to 2. आपके पास 2 रिप्रेजेंटेशन हो सकता है. कुछ फॉन्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, इधर रखते हैं. ओके,
अगर आपके पास अगर आपके पास 2 पोजीशन है तो आप इसको कैसे भर सकते हो? ओके, अगर आपके पास 2 पोजीशंस हैं तो आप इसको कैसे भर सकते हो? आप इसको भर सकते हो 0 0 से, फिर 0 1 से, 0 1 से, फिर 1 0 0 से, 1 0 से, 1 1 1 से, और 1 1 से। अगर आपके पास 2 बिट्स की पोजीशन है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको रखना है, तो यही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो हाउ मेनी टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यू हैव गॉट? 2 raised to the power number of bits that you have to represent. So 2 raised to the power 2 is what? It is equal to 4. Okay, तो टोटल आपको कितने काउंट मिले, कितने नंबर इन बाइनरी फॉर्म मिले? 4 0 0 4 1 0 1 1, करेक्ट। अब इसी को अगर Yes, हम 3 बिट का रिप्रेजेंटेशन बनाएं, अगर आपके पास 3 प्लेस होल्डर्स हैं, ओके, तो आप इसको कैसे बना सकते हो? 0 1 0 0 0 0 सीक्वेंस में पढ़ो, सीक्वेंस में चलो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 0 0 0 0 0 ओके, कैप्स लॉक दबा है मेरा। ओके, सो दिस विल बी 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0, then 0 0 1, then 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ना 0 1 0 1 सीक्वेंस में चलो, 0 1 1 1 0 1, 1 0 0 फिर यस, फिर आएगा 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 and 1 1. Please be very specific of the order. Order में चलोगे तो कुछ भूलोगे नहीं। आप कैसे काउंट करें? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, Yes. तो कितने कॉम्बिनेशंस बन गए? 8 बन गए, राइट? 8 8 8 combinations you have got. You have got 8 combinations for 3 places. So how did you got it? How did you get it? आपको कैसे मिला? 2 raised to the power 3. What is 3? So total number of placeholders, okay? And that is equal to what? 2 raised to the power 3 is equal to 8. तो आप अगर 3 places हैं तो आपको 8 combinations मिलेंगे, जो कि ये हैं। अगर आपके पास 4 places होते, तो आपको क्या combinations मिलते? 2 raised to the power 4 is equal to 16, जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर आपके पास 4 places हैं हेक्साडेसिमल में, हम लोगों ने लिखा ना हेक्साडेसिमल का रेफरेंस टेबल, कहाँ लिखा है? ये। अगर आपके पास 4 प्लेसेस हैं तो आपको 16 कॉम्बिनेशन मिल रहा है, करेक्ट। अगर यही आपके पास 5 होंगे, अगर आपके पास 5 प्लेसेस हैं, तो यू विल हैव हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस? यू विल हैव 32। तो आप 32 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 and 1 लिख सकते हो अगर आप 5 बिट का इस्तेमाल करो। तो 5 बिट का इस्तेमाल करते हुए 32 कॉम्बिनेशंस आप अपनी कॉपी में लिखिए और मुझे गूगल क्लासरूम में सेंड करिएगा, ओके? Once you are accustomed with this thing, you can do any amount of arithmetic in binary, hexadecimal and octal. Okay, so I hope today's discussion is clear. We understood how to convert binary to hexa and vice versa, and how to convert binary to octa and vice versa. I will make changes in this sheet. Ma'am. Yes, जल्दी से बोलो। हाँ, बोलो किसको? यस यस, बोलो बेटा, बोलो क्या प्रॉब्लम है? आएगा मैं। यस मैम। मैम, ये ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करने के लिए डिवीजन मेथड का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते ना? ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना आपको। हम लोग बाइनरी की बात कर रहे हैं, ऑक्टल टू बाइनरी वाइस वर्सा। मैम, डिवीजन मेथड इस्तेमाल करोगे जब Yes, sir. कन्वर्जन करोगे। When you will convert into decimal, then you will use division Okay, and multiplication. Today we are talking about octal to binary and vice versa, hexadecimal to binary and vice versa. Okay? इसको इंटरमीडिएट बीच में डेसिमल का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप अपने आप ही समझ जाएंगे उस चीज को देख लेंगे। Okay, so this is your Google Meet for your tutorial
class and ओके मैम lectures. इसको आप नोट कर लीजिए, अपने आप ज्वाइन कर लिया करिए on your time according to your timetable. रोज लिखने की जरूरत ना पड़े. And this is your Google Classroom link. ये भी हमने WhatsApp पर भेज दिया है. इसको ज्वाइन कर लीजिए. So I will be sending you sheets. Okay. And अगली बार से थोड़ी अटेंडेंस भी आपकी मैं लेने की कोशिश करूंगी. 44 people have joined. I've recorded this also. यहाँ से अटेंडेंस मिल जाएगी. Okay. Any other question? Last यस question. मैम. हाँ बोलो. मैम डेडलाइन क्या है ये सबमिट करने की? By tomorrow. Submit to me by tomorrow. कल तक दे देना. गूगल क्लासरूम पे कनेक्ट करके आपको भेजना है. इसके लिए हम आपको कल तक का टाइम दे दे रहे हैं. इसी से आप लोगों का कुछ टीचर असेसमेंट वगैरह भी निकालते रहेंगे कंटिन्यूअसली. सो ट्राई टू बी रेगुलर. और जो पढ़ते जा रहे हैं साथ में क्लास में करते चले जाएं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा स्ट्रांग रहेगी. ओके. So you can leave this meeting now. Let's meet. Your next class is tomorrow, 10:10 lecture. So we'll meet in the next class. Okay. ओके मैम. थैंक यू मैम. Thank you. थैंक यू मैम. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. मैम लेफ्ट हो गई. मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है. भाई क्लास रिकॉर्ड हो रही है अभी भी. चलो बाय.